Yes, Assalamu alaikum students. Hopefully you have prepared previous 8 lectures of this conic section and chapter number 6, conic section of second year. Today we will discuss the lecture number 9. The topic is the general equation of second degree. And what is the general equation of second degree? General equation of second degree is ax square plus by square plus gx plus fy plus c equal to 0. And this equation represent the different conics. It can be ellipse, parabola, hyperbola, circle, etc. So these two coefficients A and B help us to determine the nature of the curve. What is the type of the curve? So this A and B, by different values of A and B, the following cases arise. Case number 1, if A equal to B and not equal to 0, if both A and B are not equal to 0, but A equal to B, then equation 1 can be written as A into x square plus y square plus gx plus fy plus c equal to 0. And dividing both sides by A, we get x square plus y square plus g over ax plus f over ay plus c over a equal to 0. Now, by combining the terms containing x, this x square and g over ax, and completing the square, we can get the form x minus h whole square plus y minus k whole square, and also the complete the square by combining the terms containing y. So we will get x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. कुछ टर्म्स को आपको स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर ऑफ द टर्म्स ऐड करना पड़ेगा, फिर आपका स्क्वायर कंप्लीट होगा. आप ये क्योंकि काम पहले कर चुके हैं इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपको रिव्यू ही दे रही हूँ. आप इससे पहले ये काम कर चुके हैं कि आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया. फॉर्म आपके पास क्या बन जाएगी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. So h and k represent the center of the circle, which is equal to minus g over 2a and minus f over 2a, and the right hand side represent the radius. So radius is equal to g square over 4a square plus f square over 4a square minus c over a square root. Now in second case, if a is not equal to b and both are of the same sign, if a is not equal to b but both a and b are of the same side, means if a is positive then b is positive, or if a is negative then b is also negative, then combining the terms containing x and y and by completing the square, we obtain equation number 2. Here put small x over g over 2a is equal to capital X, and small y plus f over 2b is equal to capital Y. Then equation 2 becomes ax square plus by square is equal to g square over 4a plus f square over 4b minus c is equal to k, which is some constant. Or we can say that x square over k over a square root whole square plus y square over by dividing both sides by k, we will get this equation, and which is the standard equation of an ellipse in capital XY coordinate system. Now in third case, if a is not equal to b and both have opposite signs, say if a is positive then b is negative, or if a is negative then b is positive, so we can write equation 1 as equal to this one, where b is equal to minus b dash and b dash is positive. Again the process repeating as we have done in case 1 and 2, and completing the square, we get a capital X square minus b dash capital Y square is equal to m. Now dividing on both sides by capital M, we get x square over m over a square root whole square
minus capital Y square over M over B dash square root whole square is equal to 1. And this is the standard equation of hyperbola in capital XY coordinate system. In fourth case, if A is equal to 0 or B is equal to 0, both cannot be 0. इनमें से किसी एक को 0 होना है, दोनों को नहीं. या तो A 0 हो या B 0 हो. In this case, the equation 1 reduces ax square plus gx plus fy plus c equal to 0. Now, by completing the square, only the terms containing x, a into x square plus g over ax plus g square over 4a square is equal to minus fy minus c over g square over 4a. So, putting capital X is equal to x over g over 2a and capital Y is equal to small y plus c over f minus g square over 4af, we will get ax square is equal to minus fy, which is the standard equation of parabola in capital XY system. So we can summarize all these above cases. If A is equal to B and both are not equal to 0, then the conics represent a circle. And it will be an ellipse if A is not equal to B and both are of the same sign. And it will represent a hyperbola if A is not equal to B and both are of opposite signs. Number 4, this conics represent a parabola if either A is equal to 0 or B is equal to 0. The most general, now we will discuss the classification of conics by discriminant. क्या मतलब है इसका कि हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हुए हम कोनिक्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे. क्लासिफाई मींस कि ये कोनिक्स जो है आइदर ये इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है या ये सर्कल है. द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री you know very well, which is ax square plus 2xy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Now here the quantity, the coefficient of 2xy which is h and the coefficient of x square which is a and coefficient of y square which is equal to b. Taking these three coefficients, the quantity a square minus ab is called the discriminant of 1. So nature of the conics determined by this discriminant is if a square minus ab is less than 0, then an ellipse or a circle. Then this conics will be an ellipse or a circle. If a square minus ab equal to 0, then it will be a parabola. And if a square minus ab is greater than 0, then the conics represent a hyperbola. The equation 1 can be transformed of the form ax square plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. If the axes are rotated about the origin through an angle theta, where theta is greater than 0 less than 90, the formula is tan 2 theta is equal to 2h over a minus b. आपने ये वाला फार्मूला इससे पहले चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया हुआ है. हम वही फार्मूला यहाँ पर कर रहे हैं कि हम इस फार्मूले को यूज करके आगे हम इसकी फॉर्म्स बताएंगे कि ये कैसे इसकी हम कोनिक्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं. If a is equal to b or a is equal to 0 or b is equal to 0, then the axes are of the rotated through an angle of 45 degree. Equation of transformation, as you have found earlier, small x is equal to capital X cos theta minus y sin theta, and small y is equal to capital X sin theta plus y cos theta. Substituting these two values in the given equation and solving, we will get capital X is equal to x cos theta plus y sin theta, and capital Y is equal to minus x sin theta plus y cos theta. Under certain condition, equation 1 may be represented by conics in such a way. Case 1 represent a degenerate conics. अगर आपके पास कॉनिक्स को इस तरह के इसके कोफिशिएंट्स को डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, देन ये आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को शो करता है. इससे पहले भी मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में बताया था
कि अगर आपको दे दिया जाए आपको कोनिक्स की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनती है, जब इसेंट्रिसिटी इक्वल टू इन्फिनिटी होती है। तो बोथ केसेस में अगर आपको प्रूव करना है, कोई भी आपको जनरल इक्वेशन आपको दी हुई है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक्स दी हुई है, तो आप उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वल टू जीरो, या उसकी सेंट्रिसिटी के थ्रू भी आप देख सकते हैं। अगर इन्फिनिटी आए तो आप बता सकते हैं कि दिस विल बी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। नाउ एग्जांपल नंबर 1, डिस्कस द कोनिक्स एंड इट्स एलिमेंट्स। कोनिक्स को डिस्कस करने का क्या मतलब है कि आपने बताना है कि ये इक्वेशन किस चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल। और एलिमेंट्स का मतलब है कि आपने उसके सेंटर बताना है, उसके फोसाई बताने हैं, डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, कि जो भी आपको यहाँ पे अपने एलिमेंट्स इससे पहले पढ़े हैं, हमने डिफरेंट लेक्चर्स जो हैं डिफरेंट कॉनिक्स की एलिमेंट्स के हवाले से भी हमने लेक्चर्स पहले कर चुके हैं, तो आपने वो फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे सिंपल तरीका तो यही है कि आप इसको ए बी और एच की वैल्यू यहाँ से इसको कोनिक सेक्शन कोनिक्स की जो जनरल इक्वेशन है से कंपेयर करके आप कैलकुलेट कर लें। एच आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे 2h, यानी आपके पास 2h की जगह पे -6√3 आ जाएगा, एंड a माइनस बी, a आपके पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और b आपके पास y स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। सो a माइनस बी आपके पास यहाँ करके 30 आपने एंगल इसका निकाल लिया। नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, इसमें आप इक्वेशन थीटा को 30 पुट करके तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ पुटिंग दीस टू वैल्यूज ऑफ x स्मॉल x एंड स्मॉल y इन द गिवन इक्वेशन, वी विल गेट 7 into √3x minus y over 2 whole square minus 6√3 into √3x minus y over 2 up to so on। तो ये पुट करने से, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो इक्वेशन मिलती है which is an ellipse। Now we will calculate the elements of an ellipse। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप इसमें या इसकी वैल्यूज पुट कर दे, कैपिटल X और कैपिटल Y की। ये देखिए आपके पास यहाँ से इनकी वैल्यूज जो हैं, यहाँ कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यूज आप इसमें जो है, ये आपका एलिप्स आ गया था। अब आपने क्या करना है, सॉल्विंग इक्वेशन 2 फॉर कैपिटल X एंड कैपिटल Y और एज ऑलरेडी फाउंड इन 4। तो आपके पास ये पहले से कैलकुलेटेड जो आपने पहले कर चुके हुए हैं, हमने ये डायरेक्टली इसको वैल्यूज पुट की हैं सॉल्व करने के बाद। अब सेंटर को निकालने के लिए हम कैपिटल X और कैपिटल Y को दोनों को 0 पुट करेंगे, और यहाँ पे स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू 0 0 आ गई, विच इज द सेंटर ऑफ 1। और आपको ये भी पता है कि आप कैपिटल X स्क्वायर के नीचे जो आपके पास है ये स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर, यहाँ से मेजर और माइनर एक्सिस भी आपके पास आ जाते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर एक्सिस विच इज 4 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनर एक्सिस विच इज 2। वर्टिसेस आपके पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू +-2 एंड 0। दैट इज आप इनकी वैल्यूज को इक्वल वैल्यू x की जगह पे इसको पुट करके और y को इक्वल टू इसके पुट करने के बाद आपके पास ये वर्टिसेस आ जाते हैं। Ends of minor axis are x is equal to 0 and y is equal to +-1। इनकी वैल्यूज पुट करने से आपके पास ये इक्वेशंस आ गई। ये आपके पास एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस है। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस y is equal to 0 which is equal to this one, and इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस x is equal to 0 आपके पास ये है। यानी आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर का तो आइडिया हो जाता है ना कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कौन है। मैं इसको इसलिए रिपीट नहीं कर रही क्योंकि आप इसको ऑलरेडी डिटेल से कर चुके हैं। आप समझ लें कि आपकी ये जो एक्सरसाइज है जस्ट ये आपकी रिवीजन ही है। एनालाइज द कोनिक्स xy is equal to 4 and write its elements। xy - 4 equal to 0 पुट करें, यहाँ पे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, a और b दोनों 0 हैं। So we rotate the axis to an angle of 45 degree। इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चार्ज में पुट करके आपने इनकी वैल्यूज निकाल ली। ये वैल्यूज आपने यहाँ पुट कर दी और आपके पास जो इक्वेशन आती है वो हाइपरबोला की है। नाउ वी विल कैलकुलेट द एलिमेंट्स ऑफ हाइपरबोला। कैपिटल X को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और कैपिटल Y को इक्वल टू 0 पुट करने से आपके पास क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ हाइपरबोला विच इज 0 0। नाउ फॉर फोकल एक्सिस y is equal to 0, that is y is equal to x, and equation of conjugate axis capital X is equal to 0। conjugate axis का भी आपको पता है वो कौन सा है, conjugate axis
जो परपेंडिकुलर होता है फोकल एक्सिस के ऊपर, और यहाँ से आपके पास y इक्वल टू -x आ गया। इसेंट्रिसिटी आपकी √2 है, वो भी आपने कैलकुलेट की हुई है पहले। कोसाई आपके पास अब आ जाएंगे AE और 0 के कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये चीज आ गई, x plus y plus -4/2 and -x plus y equal to 0. Solving the above equation for x and y, we have foci क्या आ जाती है आपके पास 2/2। इनको सिंपली आपने सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, आपके पास फोसाई आ जाएंगे। वर्टिसेस के लिए आपने x को +-2/2 और y को 0 पुट करके यहाँ से जो आपके पास आएंगे ये आपके पास फोसाई वर्टिसेस आ जाएंगे। asymptotes of hyperbola are given by x square minus y square equal to 0 और x minus y equal to 0 and x plus y equal to 0। इनकी वैल्यूज पुट कीजिए, कैपिटल x किसके इक्वल है और कैपिटल y किसके इक्वल है, और आपके पास ये दो इक्वेशंस आ जाती हैं। लेकिन हमें पता है कि स्मॉल x भी इक्वल टू 0 है एंड y इज इक्वल टू 0 आर इक्वेशंस ऑफ द asymptotes ऑफ 1। सो आपके पास ये आपकी जो है इक्वेशन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 जो है ये आपके पास क्या आ जाती है, इक्वेशंस ऑफ asymptotes। Now example number 3, by a rotation of axis eliminate the xy term in the equation। इसको आप eliminate करें xy terms को, आपके पास क्या जाता है, आइडेंटिफाई करें कॉनिक्स एंड इट्स एलिमेंट्स को भी आपने आइडेंटिफाई करना है, एलिमेंट्स भी निकालने हैं और इसको कॉनिक्स का भी बताना है। सेम प्रोसीजर है, tan to थीटा से वैल्यूज पुट करें, थीटा साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और खाली थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इनकी वैल्यूज पुट करने से कैपिटल स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज पुट कीजिए और आपके पास ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। अब इनकी जो वैल्यूज हैं स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज, ये आपने गिवन जो आपके पास इक्वेशन है उसमें आप पुट कर दें और आपके पास पूरे की पूरी इक्वेशन कैपिटल x और कैपिटल y में आ जाएंगी इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, विच इज पैराबोला। अब पैराबोला के एलिमेंट्स आपने निकालने हैं, जब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ जाती हैं तो फिर आप x को 0 और y को 0 पुट करने से आपके पास यहाँ से सेंटर आपका फोकस आपके पास आ जाएगा, फिर सेंटर आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगा, एक्सिस भी आ सकता है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। शो दैट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस, ये हमने अभी केस नंबर 4 में डिस्कस किया कि आप ए बी एच जी एफ इनको आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक के साथ कंपेयर करके निकाल लिया और उसके बाद डायगोनल में ए बी सी लिखा, एच जी और फिर उसके बाद ये दो आपके पास जगह बची, यहाँ पे आपने एफ लिखा, यानी आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, ये आपके प्रूफ जो है आपके सिलेबस में नहीं है। इनकी वैल्यूज आपने पुट की, इक्वल टू 0 आएगा, जब भी इक्वल टू 0 आएगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। अब आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैलकुलेट करनी है कि वो कौन सी है। इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में दी गई है 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 5 माइनस वाई प्लस -2y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है, सेकंड डिग्री इक्वेशन बन गई इन x में। रूट्स आपने फाइंड आउट किए तो आपके पास 2 आ जाती हैं x की वैल्यूज, एक आ जाती है 2y माइनस 2/4 और सेकंड इक्वेशन आपके पास x इज इक्वल टू -2। सो दीज टू इक्वेशंस आर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस व्हिच रिप्रेजेंट बाय दिस कोन। नाउ टेंजेंट, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कॉनिक्स। आपको अगर कोई भी कॉनिक दिया हो, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये भी आपकी रिवीजन ही है। अगर आपको कोई कॉनिक्स की इक्वेशन दी हुई है एंड द पॉइंट इज आल्सो गिवन where you have find out the equation of tangent at this point to this conic. First we will differentiate the original equation and find dy by dx and put the value of the point, the coordinates of the point which is x1 y1. So slope of the tangent which is dy by dx at x1 y1 equal to minus ax1 plus hy1 plus g over hx1 plus by1 plus f, which is slope of tangent at x1 y1. Point is equal to this one, so point slope form, this is the slope, this is the point, so y minus y1 is equal to m into x minus x1। यहाँ वैल्यू पुट करके आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ये वाली चीज हमने आगे सिंपलीफाई सिंपल किया है कि हमने इसको फॉर्म बनाने के लिए ये टर्म आपको दोनों साइड पे ऐड करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाती है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हुए हैं कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स x1 पुट कर देते हैं, वाई स्क्वायर की जगह पे वाई y1, एक्स की जगह पे x प्लस x1
ठीक है, डिवाइड बाय 2। चले हम इसको नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाय एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर बाय वाई वाई वन, एक्स वाई की जगह पे 2x वाई की जगह पे एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन एंड 2x की जगह पे एक्स प्लस एक्स वन। या मैंने आपको ये बताया था कि एक्स की जगह पे एक्स प्लस एक्स वन डिवाइड बाय 2 लिखते हैं, या replace 2x by x plus x1 and 2y by y plus y1. So by putting the original equation of conics by these terms, we will get the equation of tangent at the point x1 y1 to the conics or given equation. Find the equation of tangent of the conics at the point whose ordinate is under root 2. देखिए हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए एक तो हमें स्लोप चाहिए जो कि हमें यहाँ से मिल जाएगी. Second, we have to calculate the point where the tangent is required. But here we have given only our ordinate, so we will calculate abscissa, which is x, by putting this ordinate, which is y is equal to under root 2 in the original equation, which is given x square minus x square plus y square minus 2 equal to 0. By putting y is equal to under root 2 in this equation, we will get x is equal to 0 and x is equal to under root 2. In this way, we have 2 points, which is 0 under root 2 and under root 2 under root 2. So we calculate the equation of tangents at these 2 points. First, we will get the tangent, equation of tangent at point 0 under root 2. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x तो आपका दिया हुआ है, x1 आपके पास 0 है और y1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2. x की जगह पे आपने x1 पुट करना है, xy की जगह पे आपने क्या पुट करना है, आपको यहाँ बताया था xy की जगह पे क्या पुट करना है, xy1 प्लस yx1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. अगर यहाँ 2xy नहीं है तो यहाँ पुट कीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनकी वैल्यूज पुट करने से आपके पास ये इक्वेशन आ गई. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. नाउ पुट द सेकंड पॉइंट, x1 प्लस 1 बाय 2 x1 प्लस y1 प्लस y1, जो भी आपकी पॉइंट्स है इसमें इक्वेशन में पुट करके आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हासिल हो गई. एक तो आपके पास ये तरीका, तो आपके पास ये तरीका है, अगर आपको फार्मूला डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, देन यू विल फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट at this point and at this point. Two slopes and the point also are given, 0 under 2 under 2 under root 2. By using point slope form, you can get the equations of tangents. Now exercise 6.9. By rotation of axis, eliminates the xy terms in each of the following equations. Identify the conics and find its elements. Here आपको क्या इक्वेशंस, कोई भी कॉनिक्स की इक्वेशन दे दी, आपने आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, उसके एलिमेंट्स भी निकालने, ये भी आपको पता है कि एलिमेंट्स का क्या मतलब है, वर्टिसेस फोसाई. अगर वो आपके पास इलिप्स है तो आपने मेजर माइनर एक्सिस और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो जो भी आपके वो हैं वो आपने कैलकुलेट करने हैं. लेकिन इनको एक आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है. एक तो रोटेशन ऑफ एक्सिस है, तो इसका मतलब है कि आपने एंगल की बात होगी. XY टर्म को एलिमिनेट करना है, यानी जो भी आपके पास XY टर्म है इसको आप इक्वल टू 0 पुट करके, तो वहां से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि हमने फर्दर एलिमेंट्स को निकालने के लिए. सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपने इसको आइडेंटिफाई करना है. हियर आप इसको इसको कंपेयर करें बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स. A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 1, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट and 2h is equal to -4. Putting in this equation, in this formula, tan 2 theta is equal to 2h over a minus b, we will get the quadratic equation in tan theta. So from this equation, which is 2 tan square theta minus 3 tan theta minus 2 equal to 0, इसको फैक्टराइज करें तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आएंगी, which is tan theta is equal to 2 and 2 tan theta plus 1 equal to 0. तो यहाँ टेन थीटा की वैल्यू -1/2 आ रही है, जो कि हमारे लिए एडमिसिबल नहीं है, माइनस की वैल्यू. तो यहाँ से आपने साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स हमें चाहिए, क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए होती है. एक तो प्रोसेस ये है, दूसरा प्रोसेस ये है कि आप इसे राइट एंगल ट्राइंगल बना लें. टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस.
यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल के साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज भी आप निकाल सकते हैं, जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ा था। आप किसी भी तरीके से निकालें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज आपकी यही आएंगी। Now putting these two values of sin theta and cos theta in equations of transformations, which are x is equal to capital X cos theta minus y sin theta and small y is equal to x cos theta plus y cos theta. We will get equation number 2. Now, by putting this value small x and small y in the equation, given equation, we will get equation 4 into x square plus 4y square minus 4xy plus 5 minus 4 2x square plus xy minus 4xy minus 2y square over 5 plus 4x square plus 4y square plus 4xy over 5 minus 6 equal to 0. By simplifying, आपने इसको सिंप्लीफाई करके तो ये वाली इक्वेशन आ गई। नाउ अब आपको क्या चीज गिवन है, एक्स के वाई टर्म्स भी आपके पास हैं, -8x ये तो आपके कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन एक्स वाई की टर्म को उन्होंने कहा था कि इलिमिनेट करें, एक्स वाई से एक्स वाई टर्म को इलिमिनेट, क्या वो भी आपके पास वैसे ही इलिमिनेट हो रही है। यहाँ पे आपके पास 16xy और ये भी आपके कैंसिल, -4xy ये भी आपके कैंसिल, सारी कैंसिल होने के बाद आपके पास यहाँ आ गई, ये आपके पास आ जाती है 25y square is equal to 30, y square is equal to 6 over 5. So ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। नाउ फ्रॉम 2, यहाँ पे भी आपको 2 इक्वेशंस हैं x और y में, तो x minus 2y is equal to √5 small x, एक इक्वेशन ये, और एक आपके पास यहाँ से इक्वेशन आ रही है 2, 1 2 and 3 4 and 5 इक्वेशंस आपके पास आ गए। अब आपने इनको सॉल्व करना है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो कैपिटल Y की आपके पास इक्वेशन ये आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 3 को यूज कीजिए, यूजिंग 3 in 6, 3 इक्वेशन आपके पास ये थी, इसको पुट करने से आपके पास ये आ जाए। सो वी विल गेट pair of straight lines which is 2x minus 5 plus √6 equal to 0 and 2x minus 5 minus √6 equal to 0 in part 2। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, इसको भी उसी तरीके से कंपैरिजन कीजिए, tan की वैल्यू निकालें, यहाँ tan 2 थीटा इज इक्वल टू इंफिनिटी आ रहा है, मींस थीटा इज इक्वल टू 45 है, साइन 45 और cos 45 की वैल्यूज पुट करके आप स्मॉल x और स्मॉल y की अब दो वैल्यूज आ जाती है, पुटिंग दीज टू वैल्यूज इन इक्वेशन 1, और आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमें क्या, ये सिंप्लीफिकेशन है, ये बच्चा आप कई दफा कर चुके हैं, इट इज नॉट डिफिकल्ट। सो by solving these above equations, we will get y square is equal y square minus 402x equal to 0, which represents a parabola. और इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास 2 इक्वेशंस 3 and 4 इक्वेशंस भी आपके पास आ गई। By adding 3 and 4, we will get capital X की वैल्यू and capital Y की वैल्यू, और इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपके पास ये चीज आ गई। For vertex of parabola, put x is equal to 0 and y is equal to 0, तो वो आपके पास वर्टेक्स आ जाएगा, इनको ऐड कीजिए, x is equal to 0 and y is equal to 0, this is the vertex, x is a parabola, क्या होगा आपके पास, y is equal to 0, ये पुट कीजिए और आपके पास x is equal to y, since y square is equal to 402x, as standard form is 4ax, तो यहाँ से आपके पास a भी कैलकुलेट हो जाएगा। फोकस ऑफ पैराबोला 0 0 है, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 0 पुट करने से आपके पास ये चीज आ जाएगी, तो सॉल्व करने से आपके पास x1 y1, तो फोसाई आपके पास 1 1 आ गया। ये सारा प्रोसीजर वही है जो कि आप इससे पहले लेक्चर्स में कर चुके हुए हैं। थर्ड पार्ट में भी इसी तरह से आपने tan थीटा से sin थीटा और cos थीटा की वैल्यूज निकाली, एक्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में पुट की, और ये इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट किया इन द गिवन इक्वेशन, तो आपके पास कैपिटल एक्स वाई सिस्टम में आपके पास इक्वेशन आ जाती है विच रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। अब आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके तो आपके पास कैपिटल एक्स की वैल्यू एक आ जाएगी और कैपिटल वाई की इक्वेशन आ जाएगी। फॉर वर्टेक्स ऑफ पैराबोला आप इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यहाँ से आपके पास वर्टेक्स आ जाता है। इनको इक्वेशन को सॉल्व करें, दो इक्वेशन था, इनको सॉल्व के स्मॉल एक्स इक्वल टू 0 और कैपिटल स्मॉल वाई इक्वल टू 0 इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला।
एक्सिस पैराबोला के लिए आप क्या करते हैं, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपका अलोंग वाई एक्सिस है तो वहां पे आप वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 पुट करें ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 0। दिस इज द एक्सिस पैराबोला। फोकस क्या होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ से आपके पास a की वैल्यू 1/2 आपको बाय कंपैरिजन इसको सॉल्व कीजिए, इनकी वैल्यूज को इसको एक्स वाई टर्म x के कोऑर्डिनेट्स के इक्वेट करें, y को बाय कंपैरिजन, वी विल गेट स्मॉल y इज इक्वल टू 1/2 एंड स्मॉल x इज इक्वल टू -1/√2। दिस इज द फोकस। फोर्थ पार्ट में भी आपने ऐसे ही करना है कि इक्वेशंस को आपने कंपैरिजन किया, साइन थीटा कॉस तक वैल्यूज पुट की, स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करने के बाद कैपिटल एक्स वाई में आपकी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई। यहाँ से आपको पता चला कि ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। अब आपने इसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने का जो लेक्चर था उसको आप देख लीजिएगा दोबारा से, अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही हो। अदरवाइज तो आप ये सारा जो काम है पिछले लेक्चर में कर चुके हुए हैं। यहाँ से आपने क्या फाइंड आउट किया, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई इनको इक्वेट करेंगे 0 0 के, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, वर्टिसेस, सॉरी सेंटर आ जाएगा। सेंटर से आपने यहाँ से ए और बी की वैल्यू से फिर एसेंट्रिसिटी फिर फोसाई, इनको इक्वेशन को ऐड करने से आपके पास यहाँ से फोसाई की वैल्यूज आ जाएगी, और वर्टिसेस आपके पास 0 प्लस माइनस ए है जो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, रिक्वायर्ड वर्टिसेस ये आ जाएंगे, और मेजर एक्सिस आपके पास y इक्वल टू 0 पुट करें तो ये आपके पास। देखिए बेटा, मैं आपको इतनी डिटेल से सिर्फ इसलिए नहीं करवा रही कि आप इसको सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल से इलिप्स एंड इट्स एलिमेंट्स, हाइपरबोला एंड इट्स एलिमेंट्स एंड पैराबोला एंड इट्स एलिमेंट्स के लेक्चर्स में कर चुके हुए हैं। आप इनके प्रीवियस लेक्चर्स में आप इनको देख लीजिए। बाकी सिर्फ इसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी वो आपके पास tan 2 थीटा से आपने वैल्यू कैसे निकालनी है। अदरवाइज आपका सारा प्रोसीजर यहाँ से जब ट्रांसफॉर्मेशन से आप आगे लेके चलते हैं तो ये आप बाकी काम आप सारे का सारा रिपीट हो रहा है। फिफ्थ पार्ट भी आपका ऐसा ही है, आप इसे ट्राई कीजिएगा खुद से। सिक्स पार्ट में भी आपने ऐसे ही इसको कंपेयर किया, 10 की वैल्यूज निकाल दी, इक्वेशन में पुट की, ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके पहले आपने इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया कैपिटल एक्स वाई सिस्टम में। नाउ आप आपके पास ये इलिप्स आए तो आप इलिप्स एंड एलिमेंट्स वाला आपने प्रोसीजर करना है। हाइपरबोला आए तो आप उसको देख लीजिए, हाइपरबोला एंड एलिमेंट्स के लेक्चर को, इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपने इसके एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया। सेवंथ पार्ट भी आपने ऐसे ही है, यानी आपका ये सारे का सारा क्वेश्चन में डिफरेंट कॉनिक्स को लेकर आपने इसको इसके एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट 10xy plus 8x minus 15y minus 12 equal to 0 represents a pair of straight lines and find an and equation of each line। देखिए, आपने जब इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स। So we will get a is equal to 0, h is equal to 5, b is equal to 0, g is equal to 4, f is equal to minus 15/2 and c is equal to 12, minus 12. Now you know very well that the determinant which is AHG, ABC is in the diagonal, and HG, AG and FF. By putting all these values of A, H, G, B, C and F in this determinant, if the value of the determinant equal to 0, so it will represent a pair of straight lines. अब आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकालनी है तो उसके लिए आपने जो गिवन इक्वेशन को सिंपल आपने सिंप्लीफाई करना है। 2x कॉमन ले, दोनों आप पेयरिंग करें, इनमें से 2x कॉमन ले, यहाँ से 3 और आपके पास टर्म्स आपके पास 2 आ जाती है। इक्वल टू 0 पुट करने से आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ गई। नाउ इन पार्ट 2 अगेन by comparing general equation, standard equation of conics by a given equation, we will get A, H, G, B, C and F. Put all these values in the determinant. If the determinant equal to 0, then the conics represent a pair of straight lines. And now solving this equation, we will get 6x square plus y minus 21। x की टर्म को अलग कर लिया, x स्क्वायर की अलग होगी, और y स्क्वायर वाली टर्म को अलग कर लिया। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x आ गई by using quadratic formula।
we will get two values of x, which is x is equal to y plus 9 over 3 and x is equal to minus y plus 1 over 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये टू इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ गए. नाउ इक्वेशन नंबर 3, find an equation of tangent to each of the given conics at indicated point. अगेन वही है, रिपीट हो रहा है बार बार एक ही बात. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने निकालनी है और गिवन इंडिकेटेड पॉइंट आपके पास ये है. फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको दो बातों का पता होना चाहिए. फर्स्ट, यू हैव टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट एंड द पॉइंट इज आल्सो गिवन. सो आपको कुछ भी पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, पॉइंट आपको गिवन है. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको चाहिए. By using point slope form, you can find out the equation of tangent. So first we differentiate the given equation and find dy by dx. But we have to find the slope of tangent at the point 4, 1. So put the value x is equal to 4 and y is equal to 1 in this slope is dy by dx. So m is equal to 26 over 15. By using point slope form, which is y minus 5, 1 is equal to m into x minus x1. By putting the value of x1, y1 and slope, which is 26 over 15, we will get y minus 1 is equal to 26 over 15 into x minus 4. By simplifying, we will get the equation of tangent equal to this one. Part 2, here the point is not given, only y is equal to minus 1. So we have to calculate the value of x. By putting y is equal to minus 1 in this equation, we will get x is equal to 0 and x is equal to 5. So only one value of y, which is minus 1, we have two values of x. So we have 2 points, which is 0 minus 1 and 5 minus 1. Here the value of y is only minus 1 in both points. So for calculating the slope of tangent at these 2 points, we will differentiate the equation with respect to x. We calculate dy by dx. The slope of tangent at point 0 minus 1, put the value of x is equal to 0 and y is equal to minus 1 in dy by dx, we will get m is equal to 5 over 8. And the equation of tangent is 5 minus y1 is equal to m into x minus x1. The point is 0 minus 1 and slope is 5 over 8. Putting these two values, we will get the equation of tangent is 5x minus 8y minus 8 is equal to 0. For second point, which is 5 minus 1, put x is equal to 5 and y is equal to minus 1 in this dy by dx. So the m is equal to 5 over minus 33. The point is 5 minus 1. By using point slope form, we will get the equation of tangent is 5x plus 33y is equal to minus 8. In part 3, here also the point is not given, only at x is equal to 3. So the value of y, we have to calculate the value of y by putting x is equal to 3 in the given equation. Put x is equal to 3 in equation number 1, we will get the two values of y, which is y is equal to 0 and y is equal to 1. So we have 2 points, which is 3, 0 and 3, 1. For calculating the slope of tangent, differentiate equation number 1 with respect to x, we will get dy by dx. Put the first point 3, 0 in this dy by dx, we will get the slope of tangent at point 3, 0, which is minus 1 over 3. Point is 3, 0 and slope is minus 1 over 3. By using point slope form, we will get equation of tangent at 3, 0, which is x plus 3 y minus 3 equal to 0. Next, for the point 3, 1, we will get the slope of tangent at point 3, 1. Put x is equal to 3 and y is equal to 1 in this dy by dx. So we will get m is equal to 5 over 3. The point is 3, 1 and slope is 5 over 3. By using point slope form, we will get the equation of a tangent is 5x minus 3y minus 12 equal to 0. In this way, 6.9 has completed.
बेटा आपने सारी लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि ये वाली जो एक्सरसाइज थी ये आपकी सारी की सारी रिवीजन थी पिछली 8 एक्सरसाइजेस की। सो आपने अपने पिछले जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपने पिछले लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखें, उससे रिलेटेड लेक्चर्स को, तो आपको ये समझ आ जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन से और कुछ भी नहीं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे तरीके से पढ़िए। और इकोनॉमिक्स सेक्शन जो है इसमें आमतौर पे प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो कोई क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल द बेस्ट।